Hi there, welcome you all to the third part of my lecture series of the 10th chapter of CBSE Class 10th Physics, that is Light, Reflection and Refraction. After watching this 10 minutes video, you will be able to answer what are spherical mirrors and what are the various terms related to a spherical mirror, like poles, center of curvature, radius of curvature, principal axis, etc. You will also be able to distinguish between the two types of a spherical mirror, that are convex and concave mirrors, and you will learn about the various rules for the image formation by convex and concave mirrors. So this is Anand, you are watching the official YouTube channel of Newton Gate Academy. Let's start. Mirrors can be broadly classified into two categories. The first one is plane mirror, whose reflecting surface is plane, or you can say the reflecting surface of a plane mirror is perfectly flat. On the other hand, there are mirrors whose reflecting surface is not flat. For example, in this case, the reflecting surface of this mirror is curved. In this case as well, the reflecting surface is curved. So, these mirrors are known as spherical mirrors. Spherical mirrors can be classified into two categories. First is concave mirrors. If the reflecting surface of a mirror is curved inwards, it is known as concave mirror. On the other hand, if the reflecting surface of a mirror is curved outwards, it is called convex mirrors. देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है इस कंसेप्ट को लेके कि ये कर्व्ड इनवर्ड क्या है और ये कर्व्ड आउटवर्ड क्या है. वेयर इज कर्व्ड आउटवर्ड? ओके, यहाँ पे ये कर्व्ड आउटवर्ड क्या है, राइट? तो बेसिकली अगर सोचो तो इस वाले मिरर को अगर हम उलट के रख दे तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही अपीयर तो होगा. तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर द पॉइंट दैट शुड बी नोटेड वेरी केयरफुली इज दैट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? वी ऑल नो दैट किसी भी मिरर के एक साइड को हम कोट कर देते हैं. किसी भी मिरर का एक साइड कोटेड रहता है. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस दिस साइड ऑफ दिस मिरर इज कोटेड, राइट? दिस साइड ऑफ दिस मिरर इज कोटेड. सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द लेफ्ट साइड. दिस साइड इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो लाइट रेज इधर से आने वाली है और इन लाइट रेज के लिए, इन इंसिडेंट लाइट रेज के लिए जो ये सरफेस है ये इनवर्ड कर्व्ड है. दैट इज द रीजन वी कॉल दिस मिरर एज कॉन्केव मिरर. इन द सेकेंड केस, ये वाला जो साइड है दिस इज कोटेड. दैट मीन्स हम जहां भी इस मिरर को यूज करेंगे वहां पर जो लाइट रेज है वो इस तरीके से आकर के इंसिडेंट करेगी. और फॉर दीज इनकमिंग लाइट रेज, फॉर दीज इंसिडेंट रेज, दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड. For this reason, we call this convex mirror. I hope the concept is clear now. So, can you say that the surface of a spoon curved inward can be approximated to a concave mirror? Obviously, yes. स्पून के जिस पोर्शन पे, जिस सरफेस पे हम फूड को रखते हैं और खाते हैं, that side can be approximated as a concave mirror. while जो दूसरा साइड होता है, राइट, जो कि कर्व्ड आउटवर्ड होता है, जो कि बर्ज्ड आउटवर्ड्स होता है, दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ कॉन्वेक्स मिरर, राइट? नाउ दैट वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ऑब्वियसली कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, it is the perfect time for us to understand the meaning of various terms related to a mirror. So what are these terms? These terms are radius of curvature, center of curvature, pole, focal length, focal plane, aperture and obviously the focus of a mirror. To understand the true meaning of all these terms, let's move to the next slide. जहाँ तक definition की बात हो, अगर तुम चाहो तो यहाँ से रट्टा मार सकते हो. Okay? Let's start with the first term, first mirror term, that is focus. Let's take a concave mirror. बाद में हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी समझेंगे कि फोकस कहाँ होता है. देखो, लेट्स से दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हम आगे जान जाएंगे, वैसे तुम्हें थोड़ा बहुत पता होगा ही. ओके, तो अब जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस मिरर के सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी,
वो सभी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक खास पॉइंट से होकर के क्रॉस करेंगे और इसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं. दैट मीन्स ऑल द लाइट रेज which are incident on the surface of this mirror parallel to the principal axis, this is principal axis, this is principal axis, they all will pass through the focus after reflection. right, यही है फोकस की डेफिनेशन. ऑब्वियसली एक कॉन्केव मिरर के केस में एक्चुअल में ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती है, बट इन द केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, लेट्स टेक अ कॉन्वेक्स मिरर हियर. ठीक है, दैट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर के केस में इस बार ये वाला सरफेस जो है ये कोटेड होगा. ठीक है, दैट मीन्स लाइट रेज इधर से आने वाली है. तो सबसे पहले लेट मी ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो यहाँ से लाइट रेज आएंगी. दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे. ऑब्वियसली वी कैन सी दैट इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. After being incident on the reflecting surface of this convex mirror, they will move like this, right? अब सबको स्ट्रेट लाइन ही लेना, मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है. थोड़ा बहुत क्या, मेरे साथ बहुत होता है. ठीक है, तो अब अगर तुम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दोगे ना तो यू विल गेट द फोकस. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, upon backward extension of the reflected rays you will get the focus. They all will pass through the focus, but upon the backward extension, that means it will appear that they are passing through the focus. They are not actually passing through the focus, right? So you will get the focus here in the case of a convex mirror. Okay, and this is the case of a convex mirror. Sorry, this is the case of a concave mirror. कॉन्केव मिरर. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पर एक खास पॉइंट से होकर के सभी पैरेलल लाइट रेज पास करेंगे. उस पॉइंट को हम फोकस करेंगे इन द केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही होगा, बट इट विल ओनली अपीयर, एक्चुअल में नहीं होगा, ऐसा लगेगा. दैट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आफ्टर बीइंग इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर, they will move like this, they will be reflected back like this, but all these light rays, if they are extended backward, you will get the focus. They will meet at a common point, obviously on the principal axis, and that common point will be called the focus of this convex mirror. Fine. Center of curvature, and radius of curvature. बहुत इजी है. एक कॉन्केव मिरर लेते हैं. देखो, क्योंकि ये एक स्फेरिकल मिरर है तो यू कैन इमेजिन, लेट्स से क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है तो दिस पोर्शन, दिस साइड विल बी कोटेड. सो लाइट रेज इधर से आने वाली है, राइट, इधर से आने वाली है. तो लेट्स से दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. क्योंकि ये एक स्फेरिकल मिरर है, वी कैन इमेजिन कि इसको एक स्फीयर से काटा गया है, काट करके अलग किया गया है. तो इस इमेजिनरी स्फीयर का जो भी सेंटर होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर क्रॉस करेगा, और इसी सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, राइट. सिमिलरली मान लो कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है. ऑब्वियसली मैं थोड़ा ज़्यादा कर्व कर दे रहा हूँ. एक कॉन्वेक्स मिरर है तो इन दिस केस दिस सरफेस विल बी कोटेड. लाइट रेज इधर से आने वाली है. तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि नो नीड टू जस्ट ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस एंड एवरीथिंग अगेन. तुम इमेजिन कर सकते हो कि इस कॉन्वेक्स मिरर को भी एक सरफेस से काट करके अलग किया गया है, राइट. तो इस सरफेस का जो इस इमेजिनरी स्फीयर का, जिससे कि इस कॉन्वेक्स मिरर को काट करके अलग किया गया है, इसका जहाँ भी सेंटर होगा दैट विल बी नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर. ऑब्वियसली ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा. ओके, ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा. फाइन. सो दिस इज द पोल. ये जो मिरर है इसका जो मिड पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही, इस मिरर का तुम्हें एक मिड पॉइंट मिलेगा. इस मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं, और एक मिरर में हम सारे डिस्टेंसेस को पोल से ही मेजर करते हैं. Okay, in a mirror we measure all distances from the pole. Object distance means at what distance the object is situated from the pole.
Image distance means at what distance the image is situated from the pole, right? Radius of curvature means at what distance the center of curvature is situated from the pole. So this distance is the radius of curvature of this mirror. Similarly, this distance is the radius of curvature of this mirror. तो center of curvature pole से जितने distance पे है, that will be the radius of curvature of the mirror. So this is R, radius of curvature. Fine. So now we know about center of curvature and radius of curvature, and obviously and also about the pole. Pole कौन से point को कहते हैं? Pole is a point which is situated on the principal axis, right? And it is at the midpoint of the mirror. ये याद रखना कि pole जो होता है ये सरफेस पर ही सिचुएटेड होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ही सिचुएटेड होता है. तो ये जो अगर ये इफ इट इज़ अ कॉन्केव मिरर, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ही ये पोल सिचुएटेड होगा, एंड ओब्वियसली ये प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा, राइट, एंड इस मिरर के मिड पॉइंट पर होगा. फाइन. सो व्हाट वी लर्नड अबाउट फोकस ऑफ अ मिरर, इट इज सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस and it is the point through which all those incident light rays which are parallel to the principal axis passes after reflection, right? So ये जो फोकस है ये पोल से जितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कहते हैं, राइट? This distance is known as focal length of this mirror. There are two more terms associated with a mirror. The first one is aperture. So what is aperture? It is simply the size of a mirror. अगर कोई mirror है तो इसके दोनों टिप के बीच, एक spherical mirror है, we have a spherical mirror, तो इसके दोनों टिप के बीच का जो distance होगा, this will be called the aperture of this mirror. There is another term that is focal plane of a mirror. देखो एक मिरर ड्रॉ करते, तो एक प्लेन इमेजिन करो जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और जिस प्लेन पे ये फोकस लाई कर रहा है, राइट? वी कैन इमेजिन अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू आवर प्रिंसिपल एक्सिस. ऑब्वियसली दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस. तो इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन है और फोकस इसी प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इस प्लेन को हम कहने वाले हैं फोकल प्लेन. फोकल प्लेन. ओके. फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स. कुछ रूल्स हैं, एक्चुअली टोटल 3 रूल्स हैं, जो अगर तुम्हें पता है तो तुम बहुत ही इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो, फिर चाहे वो कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम हो या कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम हो. द फर्स्ट रूल सेज इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली passes for concave mirrors or it appears to pass for convex mirror through the focus. अगर एक कॉनकेव मिरर है और जो इंसिडेंट रेज है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर से आकर के इंसिडेंट हो रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी they all will pass through the focus of this mirror. That means even इस रे के लिए भी जो reflected ray होगा that will pass through the focus of this mirror. Even for this ray, the reflected ray will pass through the focus of the mirror. This rule simply says principal axis के parallel जो भी incident rays आएंगी after being incident on the reflecting surface of this concave mirror, they all will pass through the focus. But convex mirror में it appears that they are passing through the focus, obviously upon backward extension. So अगर हम सभी reflected rays को backward extend करें तो it will appear that they are passing through the focus. Like this. You got it? Like this, it will appear that upon backward extension it will appear that they are passing through the focus. Okay, ऐसा होता है कॉन्वेक्स मिरर में. कॉनकेव में एक्चुअल में पास करती है और कॉन्वेक्स में it appears that they are passing through the focus upon backward extension.
The second rule says the incident rays through the center of curvature falls normally on the mirror and is reflected back along the same path. That means अगर center of curvature से होते हुए कोई मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है, देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, यानी सेम लाइन के अलोंग वो वापस लौट जाएगी, राइट? देखो, इनकमिंग लाइट रेज इस डायरेक्शन में थी और आउटगोइंग लाइट रेज भी सेम लाइन पर वापस लौट गई. व्हाई? बिकॉज इट वाज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रेज पास कर रही है और वो मिरर के सरफेस पर स्ट्राइक करेंगी, then it will follow back the same path. That means it will get reflected back along the same path. So concave के केस में हमने देख लिया what happens in the case of a convex mirror. सेम ही होता है, जो इंसिडेंट रे है वो सेम लाइन पर वापस लौट जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, राइट? देख लो, this was the incident ray. After being incident on the reflecting surface of this convex mirror, it got reflected back along the same path. Okay? बट यहां पर देखो एक्चुअल में ये रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं कर रही है. इट अपीयर्स दैट दे आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखो, सो होता दोनों में सेम है. ओके, रूल्स आर सेम फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, बट कॉनकेव मिरर के केस में एक्चुअल में होगा एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा लगेगा कि हो रहा है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ओके, कमिंग टू द थर्ड रूल व्हिच सेज इंसिडेंट रेज व्हिच पासेस थ्रू द फोकस. Obviously for concave mirror they actually passes through the focus, and in the case of a convex mirror it appears that they are passing through the focus. Okay, so incident rays which passes through the focus are reflected parallel to the principal axis. So what is happening here is that incident ray अगर वो focus से पास करते हुए mirror के reflecting surface पे incident होती है, then they will be reflected back parallel to the principal axis. Okay, here as well in the case of a convex mirror you can see incident rays, it appears that they are passing through the focus, so they got reflected back along a path that is parallel to the principal axis. Okay, this is what the third rule says, and अगर तुम ध्यान से देखोगे ये exactly उलट है rule number 1 का. So this was all in this video. I really appreciate your time. Thank you.